the chapter that we are going to discuss today is a very very important chapter from your board exam perspective. So definitely you will get 7 to 8 marks in class 12th board exam. This is for sure. Either it will be in the form of long question or it will be in the form of short question or 2 mark question, whatever it may be, but definitely you will get 7 to 8 marks from this chapter sure. Okay, so before directly jumping into this topic, so the topic name is semiconductor. So before directly jumping into this semiconductor electronics, we should know that from where the semiconductor term came. है कि नहीं? So first we need to understand what the matter is. Anyone who can say what is matter? Himanshu? Yes, anything which have some mass, and by putting it on the universe it should occupy some space, that will be considered as a matter. Now we can classify matter based on very मतलब a number of criteria. By using a number of criteria we can divide the matter. So if we will make our base as electrical conductivity, that means अगर कोई एक मटेरियल को कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, इस बेसिस में अगर क्लासिफाई किया जाएगा तो मैटर को हम 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट वन इज व्हाट? कंडक्टर. सेकेंड वन इज इंसुलेटर. थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर. सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी विल डिवाइड मैटर इन 3 टाइप्स, दैट इज कंडक्टर, insulator and semiconductor. What is conductor? देखो, कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगा. फॉर एग्जांपल व्हाट? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब. सो द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली पास इज नोन एज व्हाट? कंडक्टर. द नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर. गिव मी सम एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर. Wood, plastic, glass, these are the examples for what? Insulator. Insulator means what? The matter or the type of matter through which electricity can never pass. जितना भी कोशिश किया जाए उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता. That is known as what? Insulator. Now अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टर से थोड़ा कम हो और इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब बीच बीच में रहे, so in that material or to that material we can call as semiconductor. समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर हम आसान भाषा में अगर समझें तो कंडक्टर क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगा, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगा. इंसुलेटर में क्या है? बहुत डिफ़िकल्टी होगा. इतना डिफ़िकल्टी होगा कि उसमें उसके अंदर से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर. दैट मीन्स सेमीकंडक्टर में थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ना, मतलब कंडक्टर से थोड़ा कम और इंसुलेटर से ज़्यादा. समझ में आया? सो द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज व्हाई वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर. ऑलरेडी वी हैव कंडक्टर्स, राइट? कंडक्टर्स क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाता है. तो हमको वो यूज ना करके हम ये सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज in the semiconductor we can control the flow of electrons. That means कंडक्टर में अगर हम बैटरी लगा दिए तो हम उसको कंट्रोलर नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली पास होगा ही होगा. अगर हम मैं कुछ अमाउंट तक उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ तो इन द केस ऑफ कंडक्टर इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट इफ़ we are dealing with semiconductor, that we can control the speed of electrons, control the amount of electrons, whatever it may be. समझ में आया कि नहीं? सो दैट इज़ वाई द सेमी कंडक्टर इज़ नॉट ए स्मॉल टॉपिक, इट इज़ ए वास्ट टॉपिक. सेमी कंडक्टर इज बीइंग ऑलरेडी यूज्ड इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, योर मोबाइल्स, योर कैमराज, योर लैपटॉप्स, microphone itself. So everything is consist of what? Semiconductor. Why we are using semiconductor? Because we can control the flow of electrons. समझ में आया कि नहीं? तो सेमीकंडक्टर क्या है? जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? इट विल लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. now we will talk about the types of semiconductor, right? How many types of semiconductors are there? What are those?
So there are two types of semiconductors. First one is intrinsic, another one is extrinsic. So what is the meaning of intrinsic? Intrinsic word means the pure form, pure. That means only one material is used for the fabrication of semiconductor. वो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिर्फ एक ही मटेरियल क्या है ज़रूरत पड़ा है. लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और जर्मानियम सेमीकंडक्टर. So in silicon semiconductor only the material present itself is silicon. Similarly in germanium semiconductor only one material is there, that is germanium itself. So we can call this individually silicon semiconductor is an intrinsic semiconductor. Similarly individually germanium semiconductor is also intrinsic semiconductor. But if we are talking about some gallium arsenide, this is also a semiconductor. We cannot say this as a what? Intrinsic semiconductor. Why? Because there are two materials for the fabrication of semiconductor, not one material. देखो गैलियम भी है और आर्सेनाइड भी है, तो दो मटेरियल मिलके क्या हुआ है सेमीकंडक्टर बना है. दैट मीन्स दिस इज नॉट ए प्योर सेमीकंडक्टर. दैट मीन्स दिस इज नॉट मेड अप ऑफ बाय ए सिंगल मटेरियल. दिस इज formed by combining two materials. So these are known as what? Extrinsic semiconductor. Okay. Oh, later on we will know that what exactly the definition of extrinsic semiconductor. But till now we should know that extrinsic is the impure form and intrinsic is the pure form. Clear? Now, okay. See. So these are the two types. First one is intrinsic, another one is extrinsic. We know that intrinsic is the pure form, that means it is made up of only one material. So what is the need of extrinsic semiconductor? Even we know that extrinsic is the impure form, then why we are looking for the extrinsic part? Because of the conductivity. Look, in the case of technology, everyone wants to make the development, है कि नहीं? अगर मेरे पास अगर अभी 500 MB का रैम है, सो मैं ट्राई करूँगा मेरे पास कैसे 1 GB का रैम होगा. सिमिलरली 2 GB, अभी तो 8 GB 12 GB मतलब 16 GB का रैम भी आ गया है कि नहीं? तो उससे क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है कि नहीं? तो सिमिलरली इंट्रिंसिक हमको पता है प्योर फॉर्म है, बट हमको प्योर लेके हमको कोई नहीं काम करना है. हमको क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना है. So advanced technology will come by extrinsic, not by intrinsic. So हमको पता चल गया था कि intrinsic मतलब क्या है, ये है pure form, and extrinsic मतलब क्या है, impure form. तो impure form कैसे बनेगा? प्योर में अगर मैं कुछ impurity material ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, impure बन जाएगा कि नहीं? So that means, see, let's suppose this is a intrinsic semiconductor. We will take silicon. So let's suppose this is the diagram for a silicon semiconductor. Okay. So from this diagram we can able to know this is intrinsic because only silicon material is there, है कि नहीं? यहाँ पे देखो इस डायग्राम में सिलिकॉन के अलावा और कुछ है क्या? नहीं है. मतलब ये क्या है, सिर्फ एक ही मटेरियल से बना है. एक ही मटेरियल से बना है मतलब क्या है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर फॉर्म में है कि नहीं? लेकिन हमको पता चल गया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, उसका एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? कि उसका कंडक्टिविटी क्या है, कम है. अगर हम इंट्रिंसिक के जगह अगर एक्सट्रिंसिक यूज करेंगे तो हमारा क्या है, कंडक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होगा. तो मैं क्या करूँगा, इंट्रिंसिक में क्या करूँगा, मैं एक इम्प्योरिटी मटेरियल क्या करूँगा, ऐड करूँगा. कौन सा मटेरियल ऐड करूँगा, इम्प्योरिटी. मतलब प्योर में अगर मैं इम्प्योर ऐड कर दूंगा, नाउ द होल विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इम्प्योर मटेरियल, और नाउ द सेमीकंडक्टर विल बिकम व्हाट, एक्सट्रिंसिक. Initially it was intrinsic, but now after adding impurity
this is now become what? Extrinsic semiconductor. Now the important factor is what is impurity. Impurity are the material by which, और अगर हम impurity material को ऐड करेंगे ना, जिस मटेरियल को ऐड करने के बाद अगर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी अगर बढ़ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या? इम्प्योरिटी मटेरियल. क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी मटेरियल को जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाएगा तो उसका कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए. नाउ द इम्प्योरिटी मटेरियल आर ऑफ टू टाइप्स. इसको हम क्या बोलते हैं? और डोपेंट भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो हमारा डोपेंट है दो टाइप का. एक क्या क्या है? ट्राइवेलेंट एंड अनदर वन इज पेंटावेलेंट. Trivalent and pentavalent. What is the meaning of trivalent? Trivalent are the atoms having 3 electrons in their valence shell. मतलब ऐसा एटम है जिसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली फॉर द केस ऑफ पेंटावेलेंट उसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 5. ठीक है. नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ ट्राइवेलेंट आर व्हाट? boron, aluminium and gallium. Similarly, pentavalent is what? Arsenic, antimony, phosphorus. Three examples you have to remember. Okay. So trivalent में हमारा है बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम. एंड पेंटावेलेंट में क्या है? आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फॉस्फोरस. सो ट्राइवेलेंट में अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे केमिस्ट्री में तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा. सिमिलरली अगर हम पेंटावेलेंट में देखें फॉर द केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फॉस्फोरस देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल. समझ में आया कि नहीं? तो अगर लेट सपोज मैं एक ट्राइवेलेंट को ऐड किया, लेट सपोज मैं एक एल्यूमिनियम को ऐड किया, एल्यूमिनियम, तो क्या करूँगा मैं? इस सिलिकॉन की जगह अब क्या रखूँगा मैं? एल्यूमिनियम को ऐड करूँगा. तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 3 है कि नहीं? सी एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया. मतलब एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया. दैट वैकेंट स्पेस इज नोन एज व्हाट? होल. समझ में आया कि नहीं? सो यहाँ पे देखो अगर मैं ऐड करूँगा कोई एक एल्यूमिनियम मटेरियल को ऐड करूँगा कि नहीं, तो एल्यूमिनियम एक एटम को लेके उधर रखना इट इज़ नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा? एक एल्यूमिनियम ग्रुप ऑफ एटम्स को लेके रखूँगा. तो अगर एक एल्यूमिनियम से एक होल क्रिएट हुआ तो मैं अगर एक स्मॉल सीड भी एल्यूमिनियम का रखा तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स है कि नहीं? अगर मिलियंस ऑफ एटम्स है तो अगर एक एल्यूमिनियम से एक होल क्रिएट हुआ, मिलियन एल्यूमिनियम से कितना होगा? मिलियन नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होगा कि नहीं? नाउ यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? पहले इनिशियली जब देखोगे तो इंट्रिंसिक में यहाँ पे क्या था? सिलिकॉन था. जब मैं एक ट्राइवेलेंट एटम को ऐड किया, दैट मीन्स एल्यूमिनियम को ऐड किया, तो उसका तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन और एक बॉन्ड क्या है? क्रिएट नहीं हो पाया. मतलब और एक बॉन्ड क्या हुआ? पेयर नहीं हो पाया. उसमें क्या एक रह गया? होल एक रह गया. तो अगर मैं जितना नंबर ऑफ एल्यूमिनियम को ऐड करूँगा उतना नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट होगा कि नहीं? दैट मीन्स नाउ दिस बिकम इज व्हाट? एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और एक्सट्रिंसिक में इसको और क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं. वाई पी टाइप? बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल्स है. Remember, in the case of p-type semiconductor, the impurity is trivalent and the extrinsic semiconductor that will be formed after adding the trivalent will be of p-type. Now, if you will see, instead of adding aluminum, if we are adding arsenic, for example, we are taking arsenic. Initially, पहले के केस में मैं एल्यूमिनियम ऐड किया, एल्यूमिनियम में क्या था? ट्राइवेलेंट एटम था, है कि नहीं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी था. अगर मैं क्या करूँगा? ट्राइवेलेंट के जगह में एक पेंटावेलेंट ऐड करूँगा तो क्या होगा? तो पेंटावेलेंट को अभी ऐड करते हैं. देखो, सो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो था अभी क्या है? आर्सेनिक ऐड हुआ है.
आर्सेनिक का आउटर मोस्ट शेल में कितना है? एज बिकॉज इट इज ए पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट में कितना होता है वैलेंस शेल? 5। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये यहाँ पे जो होल क्रिएट हुआ था अभी क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 हो गया, और एक भी है कि नहीं? तो और एक क्या होगा? इधर रहेगा। तो यहाँ पे देखो आर्सेनिक का जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 में से 4 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया है कि नहीं, लेकिन जो और एक बच गया, देखो एक आर्सेनिक ऐड करने से मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है कि नहीं। अगर मैं मिलियंस ऑफ आर्सेनिक ऐड करूँगा तो मेरे पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो जैसे इनिशियली अगर मैं इंट्रिंसिक में ट्राईवेलेंट ऐड किया था तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ था? होल क्रिएट हुआ था। अगर मैं ट्राईवेलेंट ना ऐड करके एक पेंटावेलेंट ऐड किया तो पेंटावेलेंट में एक्स्ट्रा क्या क्रिएट हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उस पर क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे अगर देखो तुमको ध्यान से समझना है, पहले क्या था? इंट्रिंसिक था। इंट्रिंसिक में अगर मैं कैसा मटेरियल ऐड करूँगा तो पी टाइप बनता है ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट मतलब क्या है? जिसका आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली अगर मैं ट्राईवेलेंट ना ऐड करके पेंटावेलेंट करूँगा, पेंटावेलेंट का एग्जांपल क्या है? एक आर्सेनिक, आर्सेनिक ऐड किया, उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। तो 4 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, और एक जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इधर उधर घूमता रहेगा। सो सी यहाँ पे एक आर्सेनिक एटॉम ऐड करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वट एवर द सीड्स, वट एवर द components that I will add, it will contain million number of what? Arsenic. If you are adding million number of arsenic, the electrons created will be of million number. समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे जैसे पहले के केस में ट्राईवेलेंट ऐड करने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था? होल था। अब पेंटावेलेंट ऐड करूँगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स हो गया। नाउ यहाँ पे अगर मैं इंट्रिंसिक में पेंटावेलेंट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या बन गया? इम्प्योर बन गया। पहले क्या था? ओनली सिलिकॉन था, अब क्या ऐड हो गया है? आर्सेनिक ऐड हुआ है। तो आर्सेनिक ऐड हुआ मतलब ये अब क्या बन गया है? एक्सट्रिंसिक बन गया है। एक्सट्रिंसिक का भी फिर क्या है? एन टाइप। वाई एन टाइप? बिकॉज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हियर आर इलेक्ट्रॉन्स। Similarly, for the case of p type, if we are adding trivalent, then an extra hole will be created. And if the majority charge carrier are holes, then the extrinsic semiconductor that is formed after adding trivalent is what? p type. Hey.